बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्रांड मैनेजमेंट MGT 515 के पहले लेक्चर में। मेरा नाम लईक हसन जसवाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में। इससे पहले कि मैं आपके साथ बात करूँ और लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में रह चुका है। मैं आई हैव बीन वर्किंग विद banks, I've been working with fashion houses, I've made TV programs, advertising, and I have been associated with technology, and now I am here teaching you people. मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई थी वो as commercial pilot. I started my career. I got my training from United States and then from Pakistan. I have both the licenses from America and from Pakistan. Then I joined Citibank Pakistan and worked there for 2 years, and then from there onwards I was like moving on and exploring new frontiers for myself, looking at things in a different perspective and trying to understand where I would be, where I could use my abilities to its best. I've been marketing manager for Omega Pakistan and Bulgari Pakistan. Omega और बुल्गारी दो बहुत बड़े फैशन हाउसेस हैं, और उनकी जो वॉचेस की जो लाइन है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैं उनके साथ एसोसिएट रहा हूँ। मैंने सोशल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत काम किया है। मैंने एक टीवी प्रोग्राम इस्लाम और एनवायरनमेंट के नाम से भी बनाया था, और अनफॉर्चुनेटली वो एयर नहीं हो सका क्योंकि जो हमारे होस्ट थे उस प्रोग्राम के, उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू पुट इट ऑन। ब्रांडिंग जो है एक बहुत ही दिलचस्प, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एज वी मूव ऑन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द basic things, I just need to mention you a few things. Before you take on this course, you must have had read or gone through a prerequisite of MGT 411, जो कि इसका prerequisite है ब्रांड मैनेजमेंट का, और आई गेस कि आप सब ने वो पढ़ा हुआ होगा। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के, वो उसमें कुछ यूं हैं कि strong brands are among the company's most valuable assets. Managing and developing them becomes of crucial importance for long-term profitability of a firm. If you look at it, Maksad, these days branding is, one of the key things when a product is launched in the market. Or everybody wants to, own a brand or wear a brand or be associated with a brand in one way or another. So they are special, they are managed by companies, but their positions will often reside in consumers' mind. This is what we want as marketers. This implies that a brand strategist has to combine skills, deeper customer insights, clear strategic vision, and this would give you an introduction of these areas. Course outline is to increase your understanding of the important issues in planning and evaluating brand strategies, to provide the appropriate theories, models, and other tools to make branding decisions, and it would also provide you with a forum to apply these principles that I would be teaching you. And it is not enough कि मैं आपको जो है बताऊंगा जी मार्केट में क्या हो रहा है और कौन सा ब्रांड किस ब्रांड के साथ जो है लड़ाइयाँ कर रहा है और किस तरीके से उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है, whether these were good practices or bad practices. I'm not here to comment on that. But
in order to make you understand how these things work out, you need to understand really what is going on behind the scenes, because पिक्चर जो है जब देखते हैं आप तो उसके पीछे बहुत सारी एक एफर्ट हुई होती है, मकसद उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो एक ब्रांड को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो उस ब्रांड को बनाने में क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मकसद उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कहानी क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम वो केस स्टडीज़ वगैरह को भी रेफरेंस बीच में मैं ज़रूर दूंगा और आपको वो पढ़ने के लिए भी मिलेंगी। तो आप जो है उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे और उसके बाद जो है आप खुद इवॉल्व करेंगे थ्योरीज, आप खुद इवॉल्व करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि जो है आप कल को लोकल और ग्लोबल मार्केट में जाके एक इम्पैक्ट जो है वो दें, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई कुछ आप सीख के आए थे इस मार्केट में। अब जो मेजर सेगमेंट्स जो हम कवर करेंगे इस कोर्स के दौरान, उनमें इंट्रोडक्शन टू ब्रांड मैनेजमेंट और हिस्ट्री ऑफ ब्रांडिंग, उसके फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, कंज्यूमर्स एंड देयर ब्रांड्स, द कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी फ्रेमवर्क, brand knowledge and associations, brand elements, brand identity, planning and positioning strategies, tying the knot, the relationships between brands and their buyers, secondary based associations, how can they help to leverage and fortify brand position, leveraging the brand, gaining competitive advantage through brand and line extensions. Establishing a brand portfolio strategy from house of brands, endorsed brands, sub-brands to the branded house. Corporate branding issues, brands and the role of WWW, World Wide Web, critical issues when integrating the off and online world, and brand revitalization and repositioning. कभी आप लोगों ने सोचा है कि मकसद आपके घर में लक्स साबुन ही क्यों आता है, या डालडा कुकिंग ऑयल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कॉलगेट की टूथपेस्ट क्यों आती है, या मैक्लीन्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? ये सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, दीज आर जस्ट सिंपल प्रोडक्ट्स हु हैव अ नेम, हु हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स, है ना। आपके घर वाले जो हैं वो क्यों इंसिस्ट करते हैं इन सारी चीजों पे? बिकॉज दे फील कि these products or these brands give you the best possible attributes which are essential to make your life easy. एक कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोगों के अंदर जो है वो किसी तरीके से आपके जहन में डाल दी गई हैं, और इसकी वजह से आप लोगों के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि जो ब्रांड मैं इस्तेमाल करता हूं या करती हूं इज द बेस्ट। आप देखें कि जहां वो, अगर आप डालडा का एड देख रहे हो तो वो कहता है कि जहां मामता वहां डालडा। तो वो एक केयर की बात कर रहे हैं, मतलब मॉम्स आर ऑलवेज केयरिंग यार, माँ जो है वो हमेशा आपका ख्याल ही रख रही होती है ना। शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू। वो कभी भी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे आपकी सेहत या आपकी जो है ना आप कहीं किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो। शी इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो वो जो डालडा है इज टेलिंग यू और गिविंग यू अ मैसेज इन सच अ वे कि जो ये कुकिंग ऑयल है इज द बेस्ट दैट इज अवेलेबल। हालांकि कहने को तो कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल में सूफी भी है, हबीब भी है, ईवा भी है, तल्लो भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर देयर, बट व्हाई चूज डालडा? सिमिलरली आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो है घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा आपको जो है कहते हैं कि यार तू करोला ले ले, या आप करोला ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको पैसों का मसला नहीं है तो करोला है, नहीं तो फिर वो सुजुकी की बात करते हैं।
ठीक है ना। सो वो जो करोला पे जो एक ट्रस्ट है उनका, या सुजुकी पे जो एक ट्रस्ट है, वो यही नहीं है कि खाली जो है इट वुड प्रोटेक्ट यू और इट वुड टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी इन अ सेफ मैनर, बट if it breaks down or it something happens to it, there would be somebody to look after it. आपको मैकेनिक मिल जाएगा, आपको उसके पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें क्या दे रही हैं? एक पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। सो जो ब्रांड है बेसिकली हमको क्या दे रहा है? एक पीस ऑफ माइंड। नहीं तो आगे पीछे कमोडिटीज थी, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इन कमोडिटीज को हम ब्रांड भी कर सकते हैं। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, पानी हो गया। अब जो है आपको पानी लेना है तो नेस्ले का प्योर लाइफ लेना है, आपको पानी लेना है तो एक्वाफीना लेना है, चाय लेनी है तो टपाल की चाय होगी, नहीं तो लिप्टन की चाय होगी, कॉफ़ी है तो वो अपना नेस्ले की हो सकती है, मैक्सवेल हाउस की हो सकती है, ठीक है ना। सो ये सारी चॉइसेस आपको अब दे दी गई हैं, ये सारी चीज़ें ब्रांड कर दी गई हैं, और आपको वो बताया जा रहा है कि ये जो है ये किसी तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर। और यही सारी बातें जो हैं हम इस सारे कोर्स में सीख रहे होंगे कि हमने किस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट दैट वी हैव और द कॉम्पिटिशन हैज, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर going to do, and as we move on you would understand what I'm trying to say today, because अगर आप जो है देखिए ये बहुत इनिशियल स्टेज है, इसमें हमको ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं। सो लाइक तो बहुत सारी बातें हो सकता है जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ वो आपके लिए क्लियर ना हो, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, बट देन अगेन आफ्टर अ लिटिल वाइल और सम टाइम यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो है जो बात हमने की थी कुछ अर्सा पहले वो आज यहाँ पे फिट बैठ रही है। सो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखिए इस सिलसिले में। एक और चीज़ जो आपने अगर नोटिस की हो कुछ 2-3 साल से अगर आप देखें तो फैशन इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे नए नाम आए हैं और वो फैशन इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश कर रही है और बहुत उसकी वो एक वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रही है एंड वी आर मेकिंग वेव्स इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड वी हैव गॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जो कि आपके लिए एक दे कैरी एन इम्पैक्ट। आप वो जब वो ब्रांड्स जब पहनते हैं ओढ़ते हैं तो यू फील गुड अबाउट इट, आपकी जो अपनी सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ जाती है। आप जिस सोसाइटी के सेक्शन में मूव करते हैं उसमें जो है आप समझते हैं कि पीपल वुड रिकग्नाइज यू, you know, you would carry a certain aura with yourself while wearing those brands, ठीक है। So let's start off with our first chapter, and before going to that, this is the textbook which we would be consulting. This is written by Kevin Lane Keller and Parameswaran and Isaac Jacob. This is Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity, 3rd edition, Pearson Prentice Hall वालों ने छापी है। This is the book. It is easily available in the market. इसको please do buy it, and this would be our ready reference for you in your practicing marketing wherever you are. तो please ये जो है ज़रूर ले लीजिएगा। मूविंग ऑन, कहता है ब्रांड्स एंड ब्रांड मैनेजमेंट, और क्या कहते हैं इसमें, दिस इज व्हाट इट सेज। कहता है कि जी व्हाट इज अ ब्रांड, कहता है कि जी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन
says कि a brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of a competition. तो इनका एम्फोसिस किस चीज पे है कि नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन. ओके, सो नेम, टर्म, साइन, सिंबल एंड डिजाइन. पेप्सी अगर आप ले लें तो पेप्सी के ऊपर वो जो बॉल है बना हुआ, उसके जो कलर्स हैं, जो ब्लू कलर है उसके कैन का, दे ऑल सिंबलाइज. अगर वो कहीं पे भी वो जो है वो आपको कलर्स नजर आते हैं तो यू वुड इमीडिएटली रिकग्नाइज कि वो पेप्सी है. सिमिलरली अगर आप कोक की बात करें तो वो जो रेक्टेंगल रेड बॉक्स है जिसमें व्हाइट लेटरिंग होती है, अगर वो सिर्फ रेक्टेंगल रेड बॉक्स भी आपको नजर आ जाता है तो आप इमीडिएटली रिलेट कर लेते हैं कि ये कोक है. सो ये जो है आपके लिए बहुत आसान सी जो है बात उन्होंने बताई है. तो क्या कर रहे हैं वो, इन सारी चीजों से एक दूसरे को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. यू आर डिफ्रेंशिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन और फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपका जो नाम है वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है किसी दूसरे आदमी से. हर आदमी जो है हैज गॉट अ डिफरेंट नेम. सो लाइक वो जो नेम है वो इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम योर द नेक्स्ट गाय सिटिंग टू यू. समझ में आती है बात? ठीक है. सो दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्रांड दैट आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट आर कॉल्ड ब्रांड एलिमेंट्स. ठीक है, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांड एलिमेंट्स. अब जो वर्ड ब्रांड है ना वो निकला है एक ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज थी विच मेंट ब्रांडर. ब्रांडर से ये ब्रांड निकला है. और ब्रांडर का मतलब क्या था? टू बर्न, जला देना. तो जलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? कि मकसद जो ग्रीक थे या जो रोमन्स थे वहाँ पे जो लोगों के माल मवेशी थे ना, चोरी हो जाते थे, आजकल भी हो जाते हैं. तो वो जो है अपना एक खास सिंबल या नाम जो है वो अपने गाय, भैंस, घोड़ों के बैक साइड पे वो जला देते थे. वो लोहे पे वो बना के साइन सा या नाम लिख के वो उसको जला देते थे ताकि पता चल जाए कि ये जो है गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी जो है ये किसकी है. तो उसको चोरी से बचाने के लिए. इसी तरह जो ग्रीक थे उनके जो है मुख्तलिफ लोग जो कि ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल और शराब बेचते थे, उनके डिफरेंट उन्होंने अपने जार्स बनाए हुए थे डिफरेंट शेप्स के और उन पे कुछ डिज़ाइन बनाए हुए थे. तो वो जो है एक दूसरे को ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये जो है जैतून का तेल ये किसने बनाया है और ये जो शराब है ये किसने बनाई है. तो लाइक ये जो है ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. सो व्हाइल आई एम सेइंग दिस you may be able to name 100 brands of your of your mind. मकसद ऐसे ही बैठे बैठे आप जो है कर सकते हैं. मकसद there are few brands people live with. आजकल अगर आप देखें तो मकसद for mobile phones Samsung and Nokia have taken on the market like anything. Life seems little impossible without having these mobile phones with you. ठीक है. वो टू टेक दिस डिस्कशन फर्दर यहाँ पे वो कहता है कि जी मैनी प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स रेफर टू अ ब्रांड एज मोर देन दैट, एज समथिंग दैट हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस, रेपुटेशन, प्रोमिनेंस एंड सो ऑन इन द मार्केट प्लेस. सो जो मैनेजर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स हैं, वो कहते हैं कि खाली जो नेम, लोगो, सिंबल की हम बात कर रहे थे वो नहीं है, उसके अलावा उसके साथ साथ अवेयरनेस भी है.
रेपुटेशन भी है और प्रोमिनेंस भी है, ठीक है। सो वी कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन AMA डेफिनेशन ऑफ अ ब्रांड विद अ स्मॉल b एंड इंडस्ट्रीज कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रांड विद अ कैपिटल B। कहने का मकसद ये है कि जो इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स मच मोर देन व्हाट अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इज सेइंग, क्योंकि उसमें वो अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं, रेपुटेशन की बात भी कर रहे हैं और प्रोमिनेंस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वो जो है ये तीन चीजें जब अगर ऐड हो जाती हैं तो ब्रांड जो है वो एक लिविंग और जो ना ह्यूमन बीइंग की शेप्स ही नहीं लेने लग जाता, अ फूड फॉर थॉट फॉर यू पीपल, ठीक है। अब बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि जी तो फिर प्रोडक्ट क्या, तो वो कहते हैं कि प्रोडक्ट इज एनीथिंग वी कैन ऑफर टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट। अब जो है प्रोडक्ट आपकी जो है वो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में आप लेके आते हैं तो प्रोडक्ट जो है क्या है, चावल है, प्रोडक्ट क्या है, दाल है, प्रोडक्ट क्या है, टूथपेस्ट है, प्रोडक्ट क्या है, साबुन है। लेकिन जब आप उसको एक नाम दे देते हैं, जैसे लक्स का नाम दे दिया, रेक्सोना का नाम दे दिया, मैक्लीन्स का नाम दे दिया, सो इट बिकम्स अ ब्रांड, because then you ask for McLean's, you ask for Lux, you ask for Coke, you do not ask for कि यार साबुन की एक पेड़ी देना, या you do not ask कि यार टूथपेस्ट देना, because that means कि you do not have a preference, you just need a product to satisfy your need, ठीक है। so यहाँ पे जो ब्रांड की जो पावर है वो ये है कि वो रिकॉल आप करते हैं, आप उसे नाम से मांगते हैं कि मुझको ब्राइट चाहिए, मुझको एरियल चाहिए, मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए, ये नहीं कि यार एक वॉशिंग पाउडर की थैली देना, ठीक है ना। तो वॉशिंग पाउडर की जो थैली है कुड बी एनी वॉशिंग पाउडर, देन यू डू नॉट हैव अ यू नो प्रेफरेंस, और जब प्रेफरेंस नहीं होगी तो आपकी जो यू वुड नॉट बी प्रोमिनेंट इनफ, मतलब आप जो यू आर जस्ट you just have a need and you want it to be satisfied। आप कहते हैं यार मुझे भूख लगी है, ओके, अब क्या खाओगे, कुछ भी दे दो, ओके, कुछ भी, वो कुछ भी, मतलब एनीथिंग XYZ, घर में पकौड़े पड़े हैं, घर में बिस्किट पड़े हैं, यो, बट इफ यू से कि नहीं मुझको जो है मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है, या मुझको जो है पिज्जा हट से पिज्जा खाना है, सो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है नाउ हैज बीन you have pinpointed the exact thing that you want and the brand that you want। मतलब पिज्जा हट का पिज्जा, मैकडोनल्ड्स का बर्गर, यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक हो गए, ठीक है ना। सो यू आर टेलिंग समबडी के व्हाट डू यू रियली वांट, ठीक है। सो वो कहता है कि जी अ प्रोडक्ट मे बी अ फिजिकल गुड, अ सर्विस, अ रिटेल आउटलेट, अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्लेस और इवन एन आइडिया, ठीक है जी, मान लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या कहता है कि जी प्रोडक्ट क्या कहती है कि देयर आर 5 लेवल्स ऑफ मीनिंग फॉर अ प्रोडक्ट। एक कोर बेनिफिट लेवल है, देन देयर इज अ जेनरिक प्रोडक्ट लेवल, देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल, देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल, ठीक है। अब कोर बेनिफिट क्या है कि जी फंडामेंटल नीड और वांट जो है वो सेटिस्फाई वो कर सकता है। जेनेरिक में क्या करता है कि जी इज अ बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट कंटेनिंग ओनली दोज एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शन बट विद नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। क्या चीज? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का क्या काम है जी? कपड़े धोना, ओके। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडेड नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल क्या कहता है? इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट एंड एग्री टू व्हेन दे परचेज अ प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि जी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बायर नॉर्मली एक्सपेक्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कपड़े साफ हो जाएंगे उस वॉशिंग पाउडर से, ठीक है ना। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। उसका काम जरूर है कि वो उसने कपड़े साफ करने हैं वॉशिंग पाउडर ने, लेकिन जो है
वो क्या है कि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो साफ होंगे, उजले होंगे, और इट माइट बी सच के जो है you would be going to satisfy your need, you would buy it again, could be that. ठीक है जी. अब augmented में क्या कह रहा है कि includes additional product attributes, benefits or related services that distinguish the product from its competitors. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी additional attributes. अब additional attributes क्या हो सकते हैं कि जी वो दाग भी मिटा सकता है. additional attribute क्या हो सकता है कि जी उसमें से खुशबू भी आती है, कपड़ों में से एक अच्छी स्मेल भी आएगी, ठीक है, और एनीथिंग एल्स. और फिर वो पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या कहता है कि ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट अ प्रोडक्ट माइट अल्टीमेटली अंडरगो इन द फ्यूचर. मतलब फॉर अ वॉशिंग पाउडर आई डोंट नो, आई कैन नॉट से कि जी पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल क्या हो सकता है, बट लाइक अगर आप इसको टेक्नोलॉजी साइड पे ले जाएं तो टेक्नोलॉजी साइड पे ये हो सकता है कि जी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है एनर्जी, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, तो हम पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल में ये कह सकते हैं कि जी जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसको चार्ज की ज़रूरत ही ना पड़े, या इट कैन गो ऑन फॉर यू नो लाइक 10 days विदाउट बीइंग चार्ज. ठीक है ना. आजकल हमें जो है स्मार्टफोन्स के साथ यही प्रॉब्लम है ना कि वो जो है इफ़ यू यूज़ इट फॉर 1 day द बैटरी फिनिशेस, यू हैव टू रिचार्ज इट एवरी नाइट और एवरी डे, तो लाइक इट डजंट इवन लास्ट 24 hours. So a brand is therefore more than a product, as it can have dimensions that differentiate it in some way from other products designed to satisfy the same need. So ये सारी बातें जब हमने कर ली, तो अब अगर वॉशिंग पाउडर की एग्जांपल ले लें, तो अब जो है हम एरियल क्यों खरीदेंगे, या हम सर्फ एक्सेल क्यों लेंगे, या हम ब्राइट क्यों खरीदेंगे? इसलिए क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस आम वॉशिंग पाउडर से ऑटोमेटिकली अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि वो ज़्यादा कपड़े धो रहा है, कपड़ों में से अच्छी स्मेल आ रही है, कपड़े ज़्यादा उजले हैं, दे आर मोर क्लीनर, दे आर स्टेन फ्री. ठीक है. सो इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड. ठीक. अब कहता है कि जी सम ब्रांड्स क्रिएट कंपैटिटिव एडवांटेजेस विद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, अदर ब्रांड्स क्रिएट कंपैटिटिव एडवांटेजेस थ्रू नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड मींस. अब जो है जिस तरह जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं. ठीक है ना. तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ है, एक्सटेंडेड स्क्रीन्स हैं, लार्जर स्क्रीन्स हैं, बस वो. अब जो है एंड बेसिक प्रेमिस फॉर अ मोबाइल फोन इज टू टॉक टू समबडी. लेकिन अब जो है अगर आप देखें तो कंपैटिटिव एडवांटेज थ्रू नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड मींस में क्या, अगर आप लेके चलें कि अब जो है यू कैन विद दिस न्यू 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी कमिंग इन, यू आर you will be able to see somebody whom you are talking to. मतलब पहले तो फ़ोन में कुछ ऐसा सिलसिला ही नहीं था. ठीक है ना. परफॉर्मेंस तो वो सेम ही है, लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज है विच इज़ नॉट प्रोडक्ट रिलेटेड, इट इज़ समथिंग सर्विस रिलेटेड. ठीक है जी. सो कहता है कि जी वाई डू ब्रांड्स मैटर, वॉट फंक्शंस डू ब्रांड्स परफॉर्म दैट मेक देम सो वैल्यूएबल. क्यों इतने वैल्यूएबल हैं जी एक कस्टमर के लिए? बिकॉज दे आर एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि किसने बनाया है. सोनी का टीवी, सैमसंग का मोबाइल फोन, सैमसंग का टीवी, डेल का कंप्यूटर, HP का कंप्यूटर. ठीक है ना. रेवलॉन की लिपस्टिक, पेंटीन का शैम्पू. ठीक है ना. तो वो जो सोर्स जो आपके पास आ रही है वो आपको बताती है कि जी ये प्रोडक्ट जो है आपको एक ऑथेंटिक जो है ना कंपनी से आ रही है, जो कंपनी विच हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी. ठीक है जी. इट असाइंस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट, इट रिड्यूसेस द रिस्क. ठीक है ना. रिस्क कि जी आप जो चीज़ लेंगे वो एक वारंटी के साथ होगी ना. एक चीज़ जो है जिसके पीछे एक कंपनी आपके साथ जो है वो उसके पीछे खड़ी हुई है उस ब्रांड के, मतलब उसको सपोर्ट कर रही है हर तरीके से. टोयोटा की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले,
तो टोयोटा क्यों हमने लेनी है? क्योंकि उसके सेल्स एंड सर्विस में हमें कोई इश्यूज नहीं आते, ठीक है, हमें जो है उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, सर्विस हर जगह से हो जाती है। फिर अगर आप देखें तो दूसरी चीज है सर्च कॉस्ट रिड्यूसर। आपको ढूंढना नहीं पड़ता, यू जस्ट नीड टू गो एंड टेल कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी क्या है जी, वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर तो है, लेकिन अब जो है वो सर्च कॉस्ट रिड्यूसर नहीं है, मुझे एरियल चाहिए या मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए, ठीक है। इट गिव्स यू अ प्रॉमिस, बॉन्ड और पैक्ट विद द प्रोडक्ट मेकर। इट्स अ सिंबॉलिक डिवाइस, इट्स अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी। और वही चीज़ें जो हैं वो सिग्नल ऑफ क्वालिटी। मकसद अगर आप देखें तो जैसे जर्नल का एसी था या सोनी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, मकसद हर आदमी को पता है कि यार सोनी मेक्स वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है ना। डव इज होल्डिंग अ कैंपेन, और वो जो है इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट और बॉन्ड विद द कस्टमर्स इन सच अ वे कि दे केयर अबाउट योर हेयर, दे केयर अबाउट योर ब्यूटी। वो जो है आप आजकल उन्होंने एक कैंपेन शुरू की जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने बालों के साथ आएं और जो भी आपने उनके साथ खेलें। दिस इज व्हाट दे से कि खेलें उनके साथ, मीनिंग के मकसद यू कट देम, यू डाई देम, मेक फ्रिज आउट ऑफ देम, पर्म कराएं, जो भी है, बट डव इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। मकसद जो डैमेज है इट वुड नॉट लेट दैट हैपन, बिकॉज hair is a very a commodity which everybody is like holding on to. I don't have any hair anymore, तो had it been कि डव पहले आ गया होता शायद मेरा भी कुछ भला हो गया होता। बट एनीवे दैट इज द लाइटर साइड। बट वो कहने का मकसद ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो बाल हैं क्योंकि वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये इट इज़ एवरीबडीज़ प्रॉब्लम, खाली मेरा ही प्रॉब्लम नहीं था। तो वो जो है उस वक्त हमारे लिए या मेरी जनरेशन जब बनाया वो यंग, मकसद कोई ऐसी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक नाउ अ साइन ऑफ क्वालिटी कि यार बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल होता है। मकसद सोनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल होता है। टोयोटा जो है वो एक मिड साइज़ कार के उसमें बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए अगर आप देखें वो गुल अहमद है, अलकरम है, निशात लेनन है, मकसद वो भी एक अपने उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। सो इट इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब रिस्क जो है वो कितने किस्म के हैं? देयर आर लाइक 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ रिस्क्स, 6 टाइप्स ऑफ रिस्क्स दैट दे हैव आइडेंटिफाइड, कि लोग जो हैं समझते हैं कि यार ठीक है, तो इसलिए दे डू नॉट वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, दे वांट टू बाय अ ब्रांड, ठीक है। तो सबसे पहला वो कहता है कि जी देयर इज़ अ फंक्शनल रिस्क, द प्रोडक्ट डज नॉट परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशंस। देन देयर इज़ अ फिजिकल रिस्क, द प्रोडक्ट poses a threat to the physical well-being or health of the user or others. Financial risk, the product is not worth the price paid. Social risk, the product results in embarrassment from others. Psychological risk, the product affects the mental well-being of the user. Time risk, the failure of the product results in an opportunity cost of finding another satisfactory product. So, one way or another, we have all gone through one of these risks when we want to buy a product. हमारे यहाँ these risks are minimized because हमारे जो unless we are buying it for ourselves or doing this buying on our own, we do not get into these risks because somebody else is doing this for you. It could be either your father, your mother, your guardians, your brothers and sisters, or your friends. They are the ones who go through these risks and they buy a product or rather a brand for you.
why I'm saying this is because if you see, the groceries are done by parents most of the time. But nowadays, if you look at it, looking at the campaign that is being run by Safeguard soap and Dettol soap and Lifebuoy, they are targeting little children, है ना? They do not want their, children's parents to go through these risks. They are instilling, something जो physical risk है वो उसको reduce कर रहे हैं उनके लिए कि भाई you would not get, sick. आप जो है बीमार नहीं पड़ेंगे. So if you use our soap, you will be, safe from these 10 different type of germs which would cause 10 different types of, illnesses in you. So, or if you go to these supermarkets these days, so if you look at these shelves, so the two shelves that are, down below, they are most of the time filled with Dettol soap or Safeguard or, Lifebuoy. And the children, they would just pick them up from there and put it in the shopping cart. वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? बिकॉज उनको ये बता दिया गया है कि भाई आप बीमार नहीं होंगे अगर आप ये करेंगे. तो वो कहते हैं मेरा साबुन है, मुझे ये लेना है, तो उठाएंगे और वो शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल देंगे. एंड पेरेंट्स आर हैप्पी बिकॉज चलो दे वुड दिस वे द चिल्ड्रन कीप काम के दे हैव बॉट समथिंग फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड होता रहता है इस तरीके से. सो इट इज गुड इन दैट रिस्पेक्ट. अब ब्रांड्स जो हैं, why are they important to a firm? They represent enormously valuable pieces of legal property capable of influencing consumer behavior, being bought and sold and providing the security of sustained future revenues. अगर ये ब्रांड्स नहीं होंगे तो वो उनके पास वो जो प्रॉफिट्स हैं वो कहाँ से आएंगे भाई? क्योंकि वो आपका रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना? वो आपका जो टाइम फैक्टर है टू गो एंड फाइंड सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट, उसको रिड्यूस कर रहे हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस एंड वी आर रेडी टू पे दैट प्रीमियम प्राइस बिकॉज आपको वो जो पीस ऑफ माइंड है, जो सेटिस्फैक्शन है, इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, है कि नहीं? उस नंबर 1 प्रायोरिटी के लिए यू आर रेडी टू पे अ सर्टेन प्राइस एंड दैट प्राइस यू पे. तो ये जो है, ये जो ब्रांड्स हैं, नाउ दे आर देयर स्टॉक्स आर सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंजेस. दे आर there as patent, they have their own patents, they have all on their trademarks. और फिर जो है they are all also the brand equity is shown on the balance sheet. तो ये क्या है? These are a source of, as they are assets to the company, because they have a certain value. अगर आप जो है कभी स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का ख़ास तौर पे अगर आप देखें, कोक का जो स्टॉक है वो आई गेस $10 का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, $10 का वो उन्होंने इशू किया था. एंड नाउ इट्स वर्थ लाइक $75 अ पीस. तो आप सोचें कि कोक की जो वैल्यू है या उस एसेट की जो वैल्यू है, उस ट्रेडमार्क की, वो कितनी होगी यार? ठीक है ना? सो क्या इसी को टेकिंग दिस फर्दर, आइडेंटिफिकेशन टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग और ट्रेसिंग, लीगली प्रोटेक्टिंग यूनिक फीचर्स, सिग्नल ऑफ क्वालिटी लेवल, endowing products with unique associations, source of competitive advantage, source of financial returns. क्या है जी? Okay, identification to simplify handling or tracing. मतलब for a firm, it is easier for them to
आइडेंटिफाई एंड सिंप्लीफाई देयर हैंडलिंग एंड ट्रेसिंग। मकसद जो पार्ट्स हैं, जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मार्क्ड होते हैं ऑलरेडी, सो उनको जो है इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में, ठीक है। उसके जो यूनिक जो फीचर्स होते हैं दे आर लीगली प्रोटेक्टेड so that nobody else can copy them. Coca-Cola is a trademark, nobody can copy it. Pepsi is a trademark, Sony is a trademark. Similarly, Toyota, Dell, HP, Haier, these are all trademarks now. आप उसको कॉपी तो करें, some they would pounce on you and they would beat you like anything. अगर आपने कुछ अर्से पहले न्यूज़ फॉलो की हो तो ये जो ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स की जो है एक लड़ाई हो रही थी बिटवीन सैमसंग एंड एप्पल। उसमें जो है दोनों को फाइन हुआ एंड दे बोथ हैड अ वेरी लॉन्ग लीगल बैटल, ठीक है। इट गिव्स देम अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी लेवल बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेंचमार्क फॉर देम, and it is giving them unique associations. It is a source of a competitive advantage because somebody else they have certain attributes which are different from things that are available in the market or from the other brands that are available in the market. फिर it is a source of financial returns. The stronger the brand, the more the returns. और ये जो है दिस इज ट्रू इन फॉर फैशन हाउसेस, तो इट इज़ वेरी मच ट्रू बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई फाइनेंशियल रिटर्न्स। उसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि आप एक शेरवानी है, ठीक है। शेरवानी जो है वो हमारा एक नेशनल ड्रेस है। ये शेरवानी जो है आप खुद भी जाके टेलर से सिलवा सकते हैं। So, for a simple sherwani would not cost you more than 6 to 8,000 rupees, or should not cost you more than 6 to 8,000 rupees. Whereas if you go to Amir Adnan or Junaid Jamshed and you buy a sherwani from there, even a simple sherwani would not cost you anything less than 20,000 rupees. So look at the profit margin that they have. तो जो financial returns हैं they are fourfold. So it is very much important what they are doing, ठीक है। So the question is कि can everything be branded? So to answer that, you need to understand कि ultimately a brand is something that resides in the minds of the consumer. यहाँ पे हमारे दिमाग में आज मैं आपके सामने जो बैठ के ये लेक्चर दे रहा हूँ, it is with the aid of a certain technology products that we have now. You might be sitting in Quetta or Sibbi or Gilgit or Skardu, Karachi, and you are listening to me via the CDs that would be provided to you. That is all because of technology. So like, लेकिन उस CD को play करने के लिए you need a certain sort of a technology based whether it would be a computer or a CD player, and then you would need a LCD or LED or whatever, ठीक है। तो लेकिन you would not buy कि ये जो है ये यहाँ पे गया था okay जी some unknown product. You would always want to buy the best that is available in the market. तो आप कहेंगे कि नहीं जी मेरे पास तो कंप्यूटर जो है वो कॉम्पैक्ट का ही होना चाहिए, मेरे पास जो कंप्यूटर है वो सोनी ही होना चाहिए, बिकॉज दे हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स। सो लाइक, और वो एट्रीब्यूट्स जो वो आपके दिमाग में है ना, आप और वो जो है हमने एज मार्केटर्स वो उन दिमाग में डालने हैं। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। मतलब you are here to learn what these attributes, how we would instill all these attributes into the minds of the consumer so that he can make a wise choice, and that wise choice would be to buy our brand that we want to sell. ठीक है। So
क्या होता है कि how we would manipulate the minds of the consumers so that they could differentiate even in the simple of things. ठीक है, so like commodities जो कि कॉफी, बाथ सोप, फ्लावर, सॉल्ट, ओट मील, बनानाज, पिकल्स, चिकन, हम जाते हैं मुर्गी ज़िबा करवाते हैं, ले आते हैं, फिर अब जो है अब हम क्या कहते हैं कि जी हमें KNN का चिकन चाहिए, या हमें मेन्यू का चिकन चाहिए, या हमें पानी जो है की बात हो गई, जो है नेशनल का नमक चाहिए, शान का नमक चाहिए, अशरफी का आटा चाहिए, पंजाब का आटा चाहिए, ठीक है ना, लक्स चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. सो लाइक जो है ना, अब हमने इवन कमोडिटीज़ को भी ब्रांड कर दिया. ठीक है, तो एक कमोडिटी और भी थी जो कि बहुत महंगी कमोडिटी है जिसको हम हीरा कहते हैं, और डिबियर्स ने जो है क्या किया कि अ डायमंड इज फॉरएवर, उन्होंने उस डायमंड को भी ब्रांड कर दिया. सो एंड रिजल्ट क्या हुआ इस बात का? एंड रिजल्ट ये है कि ये सारे फिजिकल गुड्स भी ब्रांड हो सकते हैं, सर्विसेज, रिटेलिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जियोग्राफिक लोकेशंस, आइडियाज एंड कॉजेज. अगर आप देखें तो वो मलेशिया के एड्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ट्रूली एशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना. तो जगह जो है वो जियोग्राफिक लोकेशंस हो रही हैं. कॉजेज, आजकल जो एक बहुत बड़ा कॉज जो जिसके लिए आजकल लोग हमारे जो हैं ऊपर एक्टिव हुए हैं वो IDPs का है. ठीक है ना, हम उसको जो है वो ब्रांड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि जी आप हमारी मदद करें, मकसद लाइक फलानी NGO की मदद करें जो कि आगे IDPs की मदद कर रहे हैं, या हम कॉज जो है हम की बात हो रही होती है तो मकसद हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, या कैंसर अवेयरनेस है, या हम स्मोकिंग जो है लंग कैंसर है उसके लिए. सो हमने उन कॉजेज़ को भी ब्रांड करना शुरू कर दिया. आपने देखा होगा जो है वो ऐसी डरावनी सी तस्वीरें जो हैं वो हमने सिगरेट की डिब्बी पे भी छापनी शुरू कर दी हैं, सो दैट पीपल कुड नो कि व्हाट इल इफेक्ट्स दिस टबैको कैन कॉज. ठीक है, सो लाइक सर्विसेज में आपके पास जो है हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आप इनको भी ब्रांड कर रहे हैं. तो अब क्या है कि जी वो कहता है कि जी नेक्स्ट जो बात वो कर रहा है कि जी सोर्स ऑफ ब्रांड स्ट्रेंथ. क्या है सोर्स ब्रांड स्ट्रेंथ की? कहता है द रियल कॉज ऑफ एंड्योरिंग मार्केट लीडरशिप आर विजन एंड विल. Enduring market leaders have a revolutionary and inspiring vision of the mass market, and they exhibit an indomitable will to realize that vision. They persist under adversity, innovate relentlessly, commit financial resources, and leverage assets to realize their vision. ये कोट है मैंने जेराल्ड टी टेलिस एंड पीटर एंड गोल्डर का, फर्स्ट टू मार्केट, फर्स्ट टू फेल, रियल कॉजेज ऑफ एंड्योरिंग मार्केट लीडरशिप. ये उनका पेपर था जी जो 1996 में उन्होंने छापा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी. तो पहली चीज उसने कहा क्या कि जी विजन होनी चाहिए एंड देन विल होनी चाहिए. हमारे यहाँ जो आजकल चीज़ है विजन शायद होगी, विल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ख़त्म होती जा रही है. दे डू नॉट वांट टू डू कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता. आजकल तो जी माशरा कुछ ऐसा हो गया, या हमारा सिस्टम ऐसा है, तो हमारी जो विल है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जा रही है. विल टू डू जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई है. ठीक है जी. सो जो मार्केट लीडर्स होते हैं दे हैव एन इंस्पायरिंग विजन. ठीक है ना, और ये इंस्पायरिंग विजन जो है अगर आप देखें तो नाइकी क्या है, एक जूता ही तो है. और नाइकी कहाँ से स्टार्ट हुआ कि एक रनिंग शू बना रहे थे. एडिडास वाज द मार्केट लीडर. नाइकी जो है वो एक शू बना रहे थे, रनिंग शू, और जो है मार्केट लीडर कौन था? एडिडास. एंड दे जस्ट वांटेड टू टेक ओवर एडिडास, and they did whatever that was possible, and within their reach they designed a shoe which was perfect for running, and aista aista dekhiye they have overtaken
Adidas, Nike is now everywhere in every sport. It's not running anymore, and they have the top players जिनको वो इंडोर्स कर रहे हैं, या जो टॉप प्लेयर्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं। वो उनके चाहे कपड़े हैं, चाहे उनकी जो किट्स हैं, चाहे उनके जूते हैं, एवरीथिंग इज मेड बाय नाइकी। सो क्या हो रहा है इस सारे सिलसिले में कि आप देखें कि वो उन्होंने सोच लिया कि हमने नंबर 1 होना है इन द मार्केट, एंड दे आर नाउ नंबर 1। ठीक है, सो आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, मकसद एज ब्रांड मैनेजर्स या एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अपनी जो थिंकिंग है उसको एक ओपन और एक विजन को स्ट्रेट रखते हुए विद दैट विल टू डू, यू आर देयर। तो वो ये दिस इज व्हाट योर ब्रांड स्ट्रेंथ इज, बिकॉज यू क्लियरली नो वे यू वांट टू बी। ठीक है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ब्रांड वो डे 1 से ही वो बहुत कोई दो हैकल चीज होती है। ब्रांड इट टेक्स टाइम। ठीक है ना, सो बॉटम लाइन ये नहीं है कि वो क्या कितना स्ट्रांग है, मकसद ये भी है कि वो एक ऐसा टाइम भी था कि जब वो एक वो वल्नरेबल भी है और वो ससेप्टेबल है टू पुअर ब्रांड मैनेजमेंट, बिकॉज पीपल समटाइम्स आर सो मायोपिक कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो वो देख ही नहीं पाते कि जी ब्रांड वो और क्या क्या कर सकता है कस्टमर के लिए। दे डू नॉट इनोवेट, दे डू नॉट पुट इन एन एफर्ट, जिसकी वजह से पीपल हैव अ प्रॉब्लम। ठीक, अब व्हाट आर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स? बिजनेस वीक एक मैगजीन है जो कभी आप देखिएगा, जाके आप वेब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो हर साल एक टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट निकालता है। ठीक है, और ये 2006-2005 की लिस्ट है मेरे पास। जो नई लिस्ट आई है उसके अंदर एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड सैमसंग आर फ्यू ब्रांड्स विच हैव ओवरटेकन कोका कोला एंड स्टफ। तो अभी अगर आप देखें तो इनकी जो वर्थ है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, 2005 में कोका कोला वॉज नंबर 1 with $67.53 billion, and it slightly went down to $67 billion in 2006. Microsoft, on the other hand, was more than it was almost $60 billion, whereas in 2006 it fell down to 56.93. So like अब ये जो ब्रांड्स हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहती है, एंड मार्केट वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, इकोनॉमी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से देयर आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन दीज ब्रांड्स टू, बिकॉज अगर मार्केट वो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देगी या सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं देगी, तो ब्रांड कैन नॉट डू एनीथिंग। जो अगर जो कंज्यूमर है उसकी बाइंग पावर ही नहीं रहेगी, तो वो किस तरीके से उस ब्रांड को खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। हमारी तो कोशिश होती है एज मार्केटर्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड को बेचें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रांड इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करें, ताकि जितनी ज़्यादा वो इस्तेमाल करेंगे उतनी उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, और जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आप दो कोलाज ही देख लें, मेजर जो दो कोलाज हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला, तो उसमें आप अगर उनके एड्स देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो उनकी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी अगर आप उसको स्टडी करें, तो देखें कि कोक हमेशा 3 जनरेशन्स वो शो कर रहा होता है। मकसद उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसमें माँ बाप होते हैं, एंड देन द चिल्ड्रन, वेयर एज पेप्सी इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द यंग जनरेशन। उसकी एक वजह यह भी है कि पेप्सी इज मोर स्वीटर इन टेस्ट देन कोका कोला। तो जो
young generation like, you know, sweetness or the sweet taste more than that's a little sour taste given by Coke. तो वो जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहती है. अगर आप इस लिस्ट में देखें तो वी हैव लाइक नोकिया, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज. These are the 3 top brands which are non-US based. ठीक है. रेस्ट ये सारे ब्रांड्स जो हैं दे आर यूएस बेस्ड. सो दैट मीन्स कि द brand consumption is on a higher end in US. They have, you know, people who are more brand conscious, and the rest of the world is not making those strong brands, or they are, you know, feeding the local community more rather than being global. इसमें से अगर आप देखें तो probably you would know all of these brands. Being marketing students, I don't think so that you would not be, you know, unfamiliar with any of the brands that are here. अब जो है जो challenges and opportunities हैं वो क्या हैं हमारे पास. हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो savvy customers हैं, brand proliferation है, media fragmentation है, increased competition है, increased cost है, greater accountability है. अब सेवी कस्टमर्स से हमारा क्या मुराद है. कस्टमर्स जो हैं दे आर मोर एसोसिएटेड विद देयर ब्रांड्स. दे नो देयर ब्रांड वेल, दे नो देयर मार्केट वेल, दे आर मोर फेमिलियर विद थिंग्स. ठीक है. तो उनको पता है कि जी इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं, और कौन सी चीज़ जो है वो उनको किस तरह पोर्ट्रे करेगी, कौन सा ब्रांड उनको किस तरह पोर्ट्रे करेगा इन द सोशल सर्कल दैट दे मूव अराउंड इन. ठीक है ना. कि लोग जो हैं वो आजकल किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं, किस किस्म का मोबाइल होता है उनके पास. ठीक है ना. तो व्हाट टू टेक देम फॉर. अगर आप 80s की बात करें या अर्ली 90s की बात करें तो जो BMW हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गई, ठीक है ना, वो उसमें एक बहुत डिस्टिंक्ट वो था, डिफ्रेंसिएशन थी कि जो लोग BMW लेते थे वो यंग लोग होते थे, who have, you know, gotten a position at a very young age, who wanted to show their position. ठीक है. वो लोग बाय करते थे. whereas जो मेच्योर लोग थे वो मर्सिडीज बेंज लेते थे. हालांकि दोनों लग्जरी कार्स हैं, लेकिन इन 2000 जो है मर्सिडीज ने रियलाइज किया कि दे आर लूजिंग ऑन अ वेरी बिग मार्केट हेयर. तो उन्होंने भी छोटी स्पोर्टी कार्स बनानी शुरू कर दी फॉर द अदर सेगमेंट. सो उन्होंने कहा कि जो कस्टमर है वो बहुत सेवी हो गया, तो लाइक यू नो दे वुड लाइक, मकसद अल्टीमेटली जो BMW जिसने ली है वो बाद में बीइंग अ मैच्योर गाय वो जो है मर्सिडीज बेंज ले लेता है. तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट कि वो शुरू से ही मर्सिडीज ले और देन यू नो वो वन मर्सिडीज टू अनदर मर्सिडीज जो है वो ट्रांजिशन में आ जाए. इसी तरीके से जो है ब्रांड जो है वो डिफरेंट एरियाज में जाना शुरू कर दिया. मीडिया जो है वो फ्रेगमेंटाइज हो गया. मकसद लोग रेडियो पे भी आपकी बात सुन रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, टीवी पे भी बात हो रही है, मूवीज़ में भी आ रहे हैं. ठीक है. कंपटीशन बढ़ गया है, कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, मकसद मटेरियल जो है वो महंगा होता जा रहा है, और अकाउंटेबिलिटी भी ब्रांड्स की जो है वो बढ़ रही है. बिकॉज अब जो है हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम देखते हैं कि वो क्या है उनकी, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए. ठीक है. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से और जो है ब्रांड्स के ऊपर जो लोगों का जो फोकस है, दे वांट टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट ब्रांड. वो मिनट की खबर रखना चाह रहे हैं, तो वो जो है अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई है. अच्छा जी, अब एक चीज़ जो नई आ रही है वो ये है कि जी ब्रांड इक्विटी. अब ब्रांड इक्विटी क्या कहता है
कि ब्रांड इक्विटी में कि उसकी वर्थ क्या है ब्रांड की, ठीक है ना। तो इन सिंपल टर्म्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट्स जस्ट लाइक गुडविल, क्योंकि आप एक नाम, लोगो, सिंबल, उसकी क्या वर्थ आप लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो उसकी वर्थ तो वही है कि जो आपके कस्टमर के माइंड में जो परसीव्ड वैल्यू जो है, जो आपके कस्टमर के माइंड में है, वो उसकी ब्रांड इक्विटी है, ठीक है ना। तो वो परसीव्ड वैल्यू आप किस तरह लेके आते हैं, मतलब फॉर मी परसीव्ड वैल्यू वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन योर माइंड। देखिए इसमें जो है कि आप जो हैं जो पैसे उस ब्रांड के दे रहे हैं, डू यू थिंक दे आर इनफ, और दे आर चार्जिंग यू मोर, और दे आर चार्जिंग यू लेस, एंड आर दे गिविंग यू यू नो मोर सेटिस्फैक्शन when you consume that brand? तो वो जो है, जो that value that you have, मतलब like for me I would need a car, ठीक है जी, any car would do, but I would need a car which could carry my family, which could you know help me going from one place to another on long distance without breaking down. So I need a car which is you know reliable, which is safe. These are the two attributes I would be looking at while buying a car, ठीक है ना। So that the amount of money that I would be ready to pay in order to get these two benefits would be that you know brand equity for in my mind. So how would you measure that? So like it's really very difficult to measure कि वो brand equity कैसे होगी. So वो कहता है कि जी no common viewpoint on how it should be conceptualized and measured is there. It stresses the importance of brand role in marketing strategies. Brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely attributable to the brand. ठीक है, brand equity relates to the fact that different outcomes result in the marketing of a product or service because of its brand name as compared to if the same product or service did not have that name. Makes sense कि जी different outcomes results in marketing of a product, sir. तो brand name as compared to if the same product or service did not have that name. अगर वो नाम ना होता तो तब जो है वो आपका क्या आउटकम होता, क्या आप उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते, या आप जो है उस नाम के वजह से इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ जो है वो आपके कल्चर में रच बस जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सोसाइटी में होती हैं। सो वो जो है हर चीज़ का एक डिफरेंट आउटकम होता है। अब आपको ये देखना है कि क्या वो चीज़ जो है अगर ये ब्रांड नेम ना होता तो आपको क्या उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलती, क्या आप उतना ही उसको एंजॉय कर सकते। हमारे यहाँ मिठाइयों की बहुत सारी इकसाम है, ठीक है, और अगर आप वो देखें थोड़ा सा गौर करें तो मिठाई आज तक जो थी हमारे यहाँ कभी ब्रांड नहीं हुई थी, टिल द टाइम निराला केम इनटू द मार्केट एंड यू नो गॉट सम इम्पोर्टेंस। निराला ने मार्केट में आके मिठाई को ब्रांड कर दिया। उससे पहले 70s में अहमद एक कंपनी थी जिसने उसको ब्रांड किया था, ठीक है। अहमद का सोहन हलवा, अहमद का हबशी हलवा, एंड वो पैक होते थे टिन में पैक करके, बैरून मुल्क भी लोग साथ ले जाते थे, ठीक है। फिर लाहौर में एक शॉप थी जलंधर के नाम से, वो जलंधर के मोतीचूर के लड्डू जो हैं वो बहुत मशहूर हुए। इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि मकसद मिठाई तो सब जगह मिल जाती थी यार, लेकिन समहाउ वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलती थी टिल द टाइम यू गेट टू नो कि यार ये मिठाई निराला के शॉप से आई है, या ये लड्डू जो हैं वो जलंधर से आए हैं, या ये जो हबशी हलवा ये अहमद ने बनाया है। आप वो मिठाई खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपको किसी ने बताया कि जी ये अहमद का है तो आप फौरन ही जो है ना आपके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, आप उसको ज़्यादा जो है
इंजॉय करने लग जाते हैं, उसके टेस्ट को जो है मुंह में ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक एसोसिएशन आपकी उस नाम के साथ बनी हुई है। ठीक है ना। अब जो है जब कैडबरी जो है वो चॉकलेट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ही डेयरी मिल्क का नाम आता है तो आप जो है वो चॉकलेट, कोई भी पहले तो जुबली भी होती थी, ठीक है ना, लेकिन अब जो है वो जुबली को कोई पूछता ही नहीं, हर आदमी जो है वो डेयरी मिल्क की बात करता है, जस्ट बिकॉज यू नो इट हैज गिवन अ न्यू taste or a new kind of association with that product। हर चीज में जो है हम पहले मिठाई लेके जाते थे, अब क्या हो गया जी, ब्रांड क्योंकि इतना स्ट्रांग है वो कि वो जो है हर बात पे होगा जी कुछ मीठा हो जाए, कुछ ज़रा सी खुशी की बात मीठा हो जाए, तो वो मीठे में जो है बजाय इसके कि आप मिठाई लेके जाएं जो कि हमारी सकाफत का एक हिस्सा था, यू आर सेइंग कि जी मुझको जो है कैडबरी चाहिए। ठीक। सो अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट क्या कह रही है कि जी इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स एक्टिविटीज टू बिल्ड मेजर एंड मैनेज ब्रांड इक्विटी। तो वी वुड बी स्टडिंग दीज एक्टिविटीज, मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड हाउ टू मेजर दिस ब्रांड इक्विटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 स्टेप्स हैं जो कि हमने करने हैं। आइडेंटिफाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यूज, planning and implementing brand marketing programs, measuring and interpreting brand performance, growing and sustaining brand equity। ठीक। तो इन स्टेप्स को हमने यहाँ पे इस तरह ब्रेक डाउन कर दिया कि पहला स्टेप क्या था कि जी आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश ब्रांड पोजिशनिंग वैल्यूज, और उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है कि जी मेंटल मैप, competitive frame of reference, points of parity and points of difference, core brand values and brand mantra। First step में these are the things that we would be studying and doing in the upcoming lectures। Plan and implement brand marketing programs, उसमें क्या हो रहा है कि mixing and matching of brand elements, integrating brand marketing activities, leveraging of secondary associations। Then measure and interpret brand performance. We'll talk about brand value chain, brand audit, brand tracking, brand equity management system, growth and sustain brand equity system, growth and sustain brand equity, जिसमें we would be talking about brand product matrix, portfolio hierarchies, expansion strategies, reinforcement and revitalization। So this is what we would be discussing in upcoming lectures, and hopefully we would have a very good and wonderful session। आज जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने आपसे बात की है कि what is a brand, how these brands are evolving, can we brand everything, ठीक है, and then what is brand equity and what this strategic brand management process is all about। So taking this further, we would be talking about we would start off with identifying and establish brand positioning and values. These would be in upcoming lectures, this would be the first step that we would take and discuss in the next lectures and onward। Hopefully see you again inshallah taala in the next lecture, और आपसे फिर गपशप लगेगी और इस ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस को हम आगे लेके बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं इन ब्रांड्स के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं और हम इनको मज़ीद और किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि लॉयल्टी बढ़े, और क्योंकि लॉयल्टी बढ़ेगी तो उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा की जो टारगेट है वो यही है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, हमने अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना है ताकि वो दे शुड लिव एंड ब्रीथ आवर ब्रांड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।